In business, the business environment classified in two categories. First is internal environment, and in internal environment they include only opportunities for business, and external environment it includes in code of conduct. Code of conduct, it means that is the rules and regulations of the company. Ethical standard, it means कि without any employers can take the work from employees without any harassment and without any stress and tensions. Harassment means शोषण, बिना शोषण के उनसे काम करवाना है, उन्हें मेंटली एंड फिजिकली थकाना नहीं है, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना है. लाइक एग्जांपल, in any organization they take from work from employees only 7 to 8 hours. आगे 7 से 8 घंटे के बाद काम वो लेते हैं, तो उन्हें वो ओवर टाइम प्रोवाइड करें, ओवर टाइम या एक्स्ट्रा पेमेंट दे, ताकि एम्प्लॉयर ईजिली काम कर सके और उसका शोषण भी ना हो. देन वर्क इन्वायरमेंट दैट इज वर्क इन्वायरमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. The employers always help to create a stress free environment, and because employees want to any employees want to stress free work in any organization. They don't want any tensions and don't any want mentally illness, because if they take any they take any mental tension or physical tension, it affect in the working environment in the organization. Then management policies, every management policy should change according to their work. So every management policy, every organization there has own management policies, और उस policies के according वो काम करते हैं. That is employer and employer relations, that is very important. employers and employer relations अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो वर्किंग कंडीशंस है दैट विल बी इम्प्रूव, एंड एज वेल एज एम्प्लॉयर ऑलवेज गेट मोर एंड गुड प्रॉफिट. देन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. सो बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या विशेषता है, क्या इम्पोर्टेंस है. The first is to avail of an early opportunities. With the help of business environment, employees always taking good opportunities, and these opportunities help to they have to use these opportunities rather than to leave for competitors. Competitors के लिए नहीं छोड़नी है वो opportunities, खुद को opportunities लेनी है और उसे अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करना है अपने वर्किंग कंडीशंस के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए. देन बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. इन्वायरमेंट स्टडी प्रोवाइड अ बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. बिजनेस इन्वायरमेंट ऑलवेज गिव अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मीन्स क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन है वो हमेशा अच्छी प्रोवाइड करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन स्टडीज, एनालिसिस एंड प्लानिंग. देन थर्ड इज basis of strategy. Environmental study provide useful information for preparing the strategy of business. So business environmentals always help to gather important information or useful information and help to prepare a strategy of business, how to work, कैसे काम करना है, कौन से रिसोर्सेज को हमें कितना यूज़ करना है, मार्केट तक हमारा कैसे जो भी हमारा प्रोडक्शन है कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे वो मार्केट तक पहुंचेगा, सब चीज़ की जो प्लानिंग्स है वो बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से प्रिपेयर की जाती है. देन यूजफुल इन प्लानिंग. एनवायरनमेंट इन स्टडी प्रूव्स वेरी यूजफुल फॉर अ बिजनेस अंडरटेकिंग इन प्लानिंग. एनवायरनमेंट स्कैनिंग प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस टू प्लानर्स इन देयर डिसीजंस मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग. तो जो भी टॉप मैनेजमेंट्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो सब के जो है डिसीजंस लिए जाते हैं कि हाउ टू प्लान देयर वर्क एंड हाउ टू देन आफ्टर प्लानिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क in production way, or as well as how to distribute to the customers. Then image building, that is very important point. Environment study proves useful in improving the public image of a business.
undertaking by showing that it is sensitive to its environment and responsive to it. तो जो भी image है, that is the main motive, how to prepare their image, how to build their image in front of customers and in front of markets. तो जैसी image होगी वैसी उनकी जो that is a effect in their production as well as fame of production also. Then there's some dimensions of business environment. That first is economic environment, social environment, political environment, legal environment, technological environment, demographic environment, cultural environment, physical environment, international environment. So but I explain only 5 points which is you can write in your exam. So first is economic environment. By economic environment we mean the broad economic characteristics, factor and forces in which a business undertaking operates. It comprises the following. So economic environment सब समझ रहे हैं कि जो भी economic characteristics होंगे, हम economic characteristics होंगे, जो factors होंगे, हम उसमें कैसे implement कर सकते हैं business environment में. That is the first, the nature of economic system, including property rights, ownership of factor of production, functioning of price mechanism, economic planning, role of public sector, etc. So after the production making, that is a responsibility of business environment, how to generate the price of a production, which factors are utilized for production, and after completion the production and it is ready for distribution, it is main point is कि जो भी प्राइस है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे प्राइस को लगाना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन में ताकि वो अकॉर्डिंग टू डिमांड मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सके एंड विथ गुड प्राइस एंड इट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर चॉइस एज वेल एज कस्टमर्स बेयरिंग ऑल्सो, कि उसे कस्टमर्स खरीद भी सके और कस्टमर उसको यूटिलाइज भी कर सके. देन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड occupational distribution of labor, national output, pattern of capital investment, composition of trade, structure, equilibrium between agriculture, industry and services. तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर सबको समझ ही आ रहा है. तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए लेबर का, कि लेबर सही टाइम में पेमेंट मिल रही है, जितना हमें लेबर्स की नीड है वो लेबर हमें उसके अकॉर्डिंग हम अवेलेबल है या नहीं है, उन्हें क्या सैलरी दी जा रही है. दैन नेशनल आउटपुट, हमारा जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो हमारे नेशनल आउटपुट और नेशनल एग्रीगेट और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड है या नहीं है. दैन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है. कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कि हमारा जो भी बिजनेस है वो ट्रेड में इंक्लूड है कि नहीं, मार्केट में इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. देन एंड देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्रीकल्चर और मीन्स एग्रीकल्चर हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल्स है हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैन जो भी आफ्टर फिनिश देयर प्रोडक्शन, हाउ टू गिव द सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ये सब जो भी हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में आएगा. दैन कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट. कैपिटल मार्केट, कितना हम पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, कितना हम पैसा हम शेयर मार्केट में लगा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेट कर सके फ्रॉम मार्केट. दैन इकोनॉमिक पॉलिसीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी. तो जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेडिशनल प्री टेक ऑफ स्टेजेस, स्टेज ऑफ एबिडेंस एंड कंजप्शंस. तो जो भी हमारे प्रोडक्शंस हैं हम उसको कितना कस्टमर कितना कंज्यूम कर रहा है, हमें उस कंजप्शंस के बाद कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, दैट इज इंक्लूड इन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. अगर कंज्यूम होता है तो इट मीन्स कि हम वी गेट प्रॉफिट एंड वी गेट ग्रोथ ईयर बाय ईयर. देन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा. जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ टू डेवलप, how to give transportation services, how to distribute the production one place to another,
how to communicate with employer to employees, how to build the relationship between employer and employee. That all is included in economic environment. Then social environment, second is in social environment, first is size and distribute. By social environment we mean the broad characteristics of the society in which a business undertaking operates. सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. तो सोशल इन्वायरमेंट से आपको समझ ही आ रहा है कि जो भी वर्क होंगे इस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. सो साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, रूरल अर्बन रेशियो, मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा. तो बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी? साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो कौन कौन से लोग कौन कौन से पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं वो उसे यूटिलाइज कर रहे हैं. लाइक एज, कौन सी एज के लोग हैं, दैट इज़ अ मेल है और फीमेल है. देन दैट इज़ अ रूरल अर्बन एरिया में वो चीज़ें मीन्स गांव और शहरों के साथ साथ गांव में पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं. मोबिलिटी, इट मीन्स कि हर जगह वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है. दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. दैन सोशल एटीट्यूड्स, customs, ritual, culture, lifestyle, etc. Then second is then family structure and values. Then educational levels, awareness of right and work ethics. जो भी एजुकेशन की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क हैं, एथिक्स है, वो सोसाइटी के लिए बेटर है कि नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी और हमारा प्रोडक्शन बन रहा है वो कहीं सोसाइटी ऑलवेज इट शुड बी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑलवेज प्रॉफिटेबल फॉर द सोसाइटी रादर देन ओनली इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स ओनली. देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल फॉर्म. तो जो भी वर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए. दैन पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर एंड आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी एंड पावर सेंटर्स. तो बेटा जो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इट मीन्स कि ये जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है वो सब चीज़ें इकोनॉमिक में भी यूज़ होती हैं, सोशल में भी यूज़ होती हैं एंड पॉलिटिकल में भी यूज़ किया जाता है जब जो भी डिसीजंस मेकिंग लिए जाते हैं पर्टिकुलर सेक्टर के लिए. तो जस्ट एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्या होगा? नेचर एंड आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी एंड पावर सेंटर्स. तो लाइक जो भी लाइक हम एग्जांपल देते हैं जैसे कि बीजेपी, दैट इज़ कि जो बीजेपी की सरकार है तो उसके जो भी आइडियोलॉजी है रूलिंग पार्टी के वो एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, जो भी सिटीजन्स के लिए लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के लिए वो हित में नहीं है. तो जो भी प्लानिंग्स हैं वो पॉलिटिकल में भी तैयार की जाती है. Then technological environment. By technological factors we mean the broad characteristics of technology which is business undertaking functions. It include new approaches to provide goods and services, latest equipments and modern processes and procedures. तो फाइन जितने भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो टेक्निक्स हैं, नए नए वर्क करने की टेक्निक्स है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट इन एवरी बिजनेस. क्यों होगा? जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स आखिर होते हैं तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स वो ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी प्रोडक्शन की स्पीड है दैट इज़ ईजली जो स्पीड होगी दैट इज़ स्पीड ऑफ वर्किंग कंडीशन इज इंक्रीजिंग मोर एंड more with the help of these all technology. Then demographic environment. Demographic environment we mean the broad characteristics of population in which a business undertaking operates. The demographic environment greatly influences the business activities. The more the size of population of a country, the wider will be market for goods and services. तो demographic environment it means study of population. तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ वी मेक एनी प्रोडक्शन फर्स्ट वी ऑल वी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज़ यूजफुल फॉर इन विच साइज ऑफ पॉपुलेशन. वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेल एंड सिर्फ फीमेल्स के लिए यूटिलाइज है, या सिर्फ वो ओनली चिल्ड्रंस के लिए यूटिलाइज है, या सिर्फ ओनली एडल्ट्स के लिए यूटिलाइज है.
तो ये सब चीज़ की जो प्लानिंग्स होनी दैट इज़ वेरी important. But the size of population is not the only measure of development of business. The level of education, per capita income, distribution of income, sex ratio, age, health and distribution of population etc. तो से size it means कि age is not important. उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन है पर्टिकुलर प्रोडक्शन से वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन उसके बाद पर कैपिटल इनकम, कितने लोग आपके अकॉर्डिंग देयर इनकम कितने लोग प्रोडक्शन आपका यूज़ कर रहे हैं. देन मेल यूज़ कर रहे हैं कि फीमेल यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल एंड सो ऑन. देन फिजिकल इन्वायरमेंट. बाय फिजिकल इन्वायरमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोपोग्राफिकल condition of a country which include availability of natural resources, their distribution, fertility of soil, water, wind, energy, forest, mountain, minerals, etc. Though physical environment is an important factor of business and economic development, but it is not all in all. So physical environment is always also important for business environment, because if we produce any commodity, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो ईजिली अवेलेबल है कि नहीं है. दैट इज देन सेकेंड इज़ अ क्लाइमेट, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन अ क्लाइमेटिकल कंडीशन कि कैसा जो वेदर है वो फ्रूटफुल है या नहीं है. देन सेकेंड इज़ की जो विंड है, सॉइल कंडीशंस हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्शन. दीज ऑल इज़ अ इंक्लूड इन अ फिजिकल environment. So in next class I will start economic reform. So firstly please read these all topics and make your notes in your notebook.